ایک بادشاہ تھا۔ اس میں ایک عادت بد تھی، اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نم اور لاڈو پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امیر سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچہ وغیرہ بیچتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے موجب اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بدعادتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا۔ سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دے دیا کرتی، چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالی، خوبصورت تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کو آسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کو بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دوست دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی،
बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने की बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचाया। वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे, उसकी आंखें निकाल ले और उसके गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। उसे किसी सूरत यह गवारा ना था, अगरचे उसे अपनी बहन के मतलब अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने इसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलट कर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाल कर ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, इसमें इन आँखों को और अपनी आँखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आँखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुतल्लिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल गोश गुजार कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, इसे अपने अमान में रख और इसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल, फूल और बूटे खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। जारियों कांटों से उलझकर उसके बसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिरकार उसके बदन पर कोई कपड़ा न रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाऊ लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्फाकन बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी की कानों में किसी गोरे के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सतर पोशी करके छुप के बैठ गई। बादशाह भी आके इसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और छायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने की खातिर लेट गया। चूँकि इसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी नज़र दरख्त के घने पत्तों में पशीदा किसी हैत पर पड़ी। वो उछल कर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान, जो भी हो, अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे
बिछी चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं इसे ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर आ गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरीफ्ता हो गया। जज शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो इसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुँचते ही बादशाह पहले वज़ीर के घर जा पहुँचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी इमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊँगा। वज़ीर ने अदब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, यह आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाएं। बादशाह शहजादी को वज़ीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वज़ीर के घर आ पहुँचे। वज़ीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से इसके मतलब कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की वलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन गई थी, पूछा, अब जब कि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा, तुम अब एक बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसी की लड़की हो और किस जगह से तुम्हारा तलक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। माओ साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटी की वलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरे बेटे की वलादत हुई तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फलां मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफ़रत थी, इसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में खुवार ज़िंदगी गुजारने लगी। वहाँ तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊँगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरा जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाओ जलाल और तमतरक से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ मुल्क के ज़रूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने वज़ीर, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलका को लेकर रवाना हो जाओ। मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से ज़रूर आकर मिलूँगा। वज़ीर, वकील और काजी शहजादी को लेकर लाओ लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। खादमों ने शहजादी का खेमा खड़ा किया। तब शहजादी ने देखा कि वज़ीर का खेमा भी इसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। शहजादी ने वज़ीर को बुलाकर इससे पूछा, ए वज़ीर, तुम जानते हो कि मैं
एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ। तुम अपना खीमा यहाँ से दूर लगवा दो। वज़ीर ने कहा, मलका साहबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो वो बादशाह को क्या जवाब देंगे। वज़ीर के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रहा था। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही भांप चुकी थी कि वज़ीर बादियात की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि वज़ीर है तो इसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वज़ीर आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा, ऐ बादशाह वज़ीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी भी। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे मखलूक के सामने बदनाम मत कर और मेरे खीमे से निकल जा। लेकिन बगैरत वज़ीर नहीं टला। जब शहजादी ने देखा कि वज़ीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो इसने अपने बड़े बेटे को वज़ीर के सामने किया कि तुम इस बच्चे के सर की कसम इस तरह मत करो, इसे अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए कुरान की दुहाई दी। लेकिन बदकिरदार वज़ीर के दिमाग में शैतान पूरी तरह से गर कर चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकाल कर एक ही वार से बच्चे का सर दर्द से अलग किया। शहजादी समझ गई कि बादशाह वज़ीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने वज़ीर से कहा, तुम अब बिल्कुल भी नहीं टलोगे। मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी वज़ू में हूँ। मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वज़ू को तोड़ कर आ जाती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वज़ीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़े जारी के पीछे छुप गई। वज़ीर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खेमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुँचे। खादमों ने शहजादी का खेमा खड़ा करना शुरू किया। शहजादी ने देखा कि वज़ीर ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि खुदाम एक और खेमा इसके खेमे के करीब खड़ा कर रहा है। पूछा, यह किसका खेमा है? खुदाम ने जवाब दिया कि वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा, मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटवा दो, यह अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, ऐ मलका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा कर दिया है और परजोर तकीद की है। अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी ने जवाबन कहा, इतने जमे गफीर के दरमियान मुझे और मेरे सामान को कोई कज़क नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर खड़ा करवाओ। लेकिन बद किरदार वकील टच से मस न हुआ और अपना खेमा उधर ही खड़ा करवा दिया। शहजादी पहले से ही वज़ीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए रात अपने पूरी होश और हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आते सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो ललकारा, खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खेमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो
और अपने अंजाम की फिक्र कर। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ टलने वाला था। वो आस्ता आस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई ये बदजात भी नहीं टलने वाला। उसने दुहाई दी कि इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ और निकल जा यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाला तो मुझे मौका दिए, क्योंकि मैं पाक व साफ और वजू में हूँ। मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं खुद को नापाक कर दूँ, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी, और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी, और आखिरकार थक कर एक बड़े जारी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खोलते तेल में तल देगा। वकील ने जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में जाकर सोता बन गया। जब सुबह फूटी तो शहजादी आस्ता आस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरे मंजिल पर पड़ाव डाला तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़ा करवा दिए थे। वो शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खेमा उसके खेमे के सामने खड़ा करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी बेहतर समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए क़यामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी बदजात भी इन दोनों से किसी तौर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरमा खरमा खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने इसे भी बेहतर समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वज़ीर वकील जाहल थे, लेकिन तुम तो आलम व फाज़िल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। इस पे इन बातों मिन्नतों समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि यह भी नहीं टलने वाला, तो इस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को इसके सामने कर दिया। उसको दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो इन दोनों से भी दुहात आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने इसे भी यही कह के मैं पाक साफ हूँ, वज़ू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वज़ू तोड़ दूँ, उसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। यह फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। परशोर दरिया उसे चक्कर देकर
कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो कि भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाई। अब शहजादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके होशो हवास जवाब देंगे कि कहाँ वो तीनों बदजात बदकरदार किनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंगे दरंगे फ़कीरों के हत्थे चढ़ गई। फ़कीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी ही है। आखिर सुलह ये ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे। वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक ज़ेरक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि यह किसी शहनशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, या मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो। इसकी बरकत से तुम सब सरखरूर होंगे। बाप के फैसले से फ़कीर बहुत खुश होकर और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। उनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वज़ीर, वकील और काजी इससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार थे। पूछा, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने यक ज़बान होकर कहा, मलका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि यह क्या बात होगी। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम सुसर बादशाह को देखूं और इससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियां से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चे तक खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के ज़रिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फ़कीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुन-गुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि इसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक़ था। उसने अपने फ़कीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है। क्या वो इसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देंगे या नहीं। फ़कीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके इसको यह गोश्त गुजार दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है। अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर आएं। बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो वो इसे शाही किस्से गो रख देंगे। शाम को फ़कीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह के लिए किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फ़कीरों को बहुत सा इनाम और अकराम दिया। फ़कीर इनाम और अकराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और नाम व कराम पाकर वापस अपने फ़कीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फ़कीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि तो आज इसका शौहर, बादशाह, वज़ीर, वकील, काजी वगैरह भी इसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा, आज तो किस्सा मज़ा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज़ की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत ख़ास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफ़ाए हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई उठ गया तो
मैं दास्तान सुनाना बंद करूँगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊँगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपने बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के ज़रिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नज़र पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बुरी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्म और सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की इसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खतून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फ़कीरों की तरफ फेंक दिए, जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा, इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बेईमान में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता के बायस अब बुरा हो गया था। उसे पहले ही से अपने बेटी के साथ किए गए जुल्म और सितम से बहुत पेशमियानी और पछतावा था। जब उसे दास्तान के ज़रिए अपनी बेटी के मतलब पता चला, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान जारी रखना, रोकना मत। फ़कीर भाइयों के तो इतने इनामात देखकर बादशाह खिल उठी। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजर इसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे ब्याह रचाया। शहजादी का शोहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी और इनाम से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि यह तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकाल कर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फ़कीर भाइयों के तो पैर खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। बादशाह ने इस लड़की से शादी की। उससे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे उनके बेटों के साथ अपने वज़ीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना किया। अब वज़ीर, वकील और काजी के उस्तान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी से देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फ़कीर भाइयों की बातें खुशी से खिली जा रही थी। पहली मंजिल पर बादशाह का वज़ीर निपाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। वज़ीर मनाया, मुझे बहुत ज़ोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठो बदजात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। वज़ीर चुप करके बैठ गया। दूसरी मंजिल पर इसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ाइम पूरा करने के लिए इसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत, मुझे ज़ोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाला, बस कर बज़ात,
और खामोशी से बैठ। जब हकीकत ज़ाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और इस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बहाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांट कर चुप करवा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की गुग्गी बंद हो गई कि हो न हो यह हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध कर बैठ गए। फकीर उस लड़की को अपने बाप के पास लेकर गए। उनके अक्लमंद बाप ने उस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह के आंखों से जल जल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक़ है। उसने अपने भाइयों के ज़रिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आके उसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हुआ। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब हटा दी तो इसके शोहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शोहर बीवी को पाकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा कि बोल कैसी सज़ा चाहिए, 4 चरी चाबुक या 4 बटोर। ये बरहवी ज़बान में 2 सख्त सज़ाओं के नाम है। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए, हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से चारों तरफ में बांधकर उन्हें 4 मुखालिफ सीमत में दुरा दिया, जिनसे उनके जिस्म के टुकड़ों में बट गए। इसी तरह इन बदजातों को उनके किए की सज़ा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शोहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे और हंसी खुशी से रहने लगे।